Hey guys, good morning to all of you. Today I am going to discuss with you the topic on English. Subject is English for from middle to onward classes. Means middle से लेके हम 6 से लेके 10th, 11th, 12th एंड onward जितनी भी क्लासेस हैं जिनको इंग्लिश की जरूरत, ग्रामर की जरूरत है, उसमें हम ये चेंज ऑफ नरेशन एक टॉपिक ले रहे हैं। जो सब टॉपिक मेरा है चेंज ऑफ नरेशन, टॉपिक है जनरल इंग्लिश ग्रामर। तो आज पार्ट फर्स्ट रिव्यू में कर रहे हैं क्योंकि इस पार्ट को मैं पहले भी कर चुका हूं कि इन मेरी जो पहले जितनी वीडियोस हैं उनमें मैंने ये पार्ट पहले भी पढ़ाया हुआ, डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ उसमें शायद देयर मे बी सम discrepancies that has to overcome in this topic due to oversight. Something has not been completed, so I will try my best to explain with you change of narration with rules. Today we will discuss only rules with examples. That's all. Then the next video will be on change of narration and their as per tense and as per rules. But first today only we will discuss here only one topic, that is change of narration. Part first review exercise mean that the word that video that has been already discussed with you, I want to again explain the same thing with some modified form में. ठीक है? Here there would be some modification in my videos. I am very much thankful to those who are watching my videos and those who have not watched, and my subscription जो है it has I have completed 1000 plus. I am thankful to all my subscribers for subscribing my channel for in every nook and corner of my country. I have also given one thing on my YouTube channel, that my motto is to only serve the nation by providing education free of cost, especially to the weaker section of the society, and more देखा जाए तो it is only for those who are incapable to pay the tuition fees, because number of institutes are there, they are collecting a large huge amount of sums from the students, and number of parents are those, because India is a country in which number of poor is far more as compared to the number of riches, because there is a wide disparity between the rich and the poor in our country. So in order to accommodate those, my motto is to only provide education free of cost to all my nears and dears. चलो करते, let's start the topic, come to the point. My topic is change of narration. तो change of narration क्या होता है? Basically it is what? The words which the speaker speaks, and those words spoken by the speaker are again placed before the third person, कि that person was saying like this way, कि वो ऐसा कह रहा था. हिंदी में क्या है कि जैसे हम स्पीच करते हैं, जो हम बात बोलते हैं, the word, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा है क्या, he says, ये कामा डाल के हमने अलग कर दिया, वह कहता है I am failed या I am undone, कि मैं ठीक नहीं हूं. अब ये क्या कहा कि these words, he says, वह कहता है, मैं I am undone, कि मैं काबिल नहीं हूं, उससे मेरे में कोई कमी है. तो these words, the words spoken by the speaker are taken in the inverted commas. This is called the reported speech. The words which are spoken by the speaker, they are taken as a reported speech, and the word and the verb that is separated by comma, that is called the reported verb. Reported verb. So in a narration mean direct speech, direct जो आदमी कह रहा है कि he says, the word says, it is a verb, so it has been separated from the reported speech. Reported speech से अलग किया by placing comma over here. यहाँ पे comma लगा के हमने इसको अलग किया, and then the word which are uttered by the speaker, they are taken in the इन्वर्टर कामा, उनको हमने इन्वर्टर कामा क्लोज कर लिया. ठीक है? अब इस चीज को हम क्या करते हैं, ये जो बात कही है एक आदमी ने, हम इस बात को दूसरे आदमी को जाकर सुना रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं यार अनडन हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, आई एम नॉट ए कैपेबल पर्सन, मैं योग्य नहीं हूं. तो ये बात स्पीकर की बात उठा के हम जब तीसरे बंदे को सुनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द दैट स्पीच. तो स्पीच जो है बेसिकली क्या है, यू मस्ट नोट दिस, स्पीच इज ऑफ टू टाइप्स.
स्पीच जो होती है वो कितनी किस्म की? दो किस्म की। वो मैंने आई हैव टू डिस्कस बिफोर, बट आई हैव साइटेड वन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीच इज। ठीक है, तो मैंने आपको पहले उदाहरण दे दिया कि स्पीच होती क्या है। तो स्पीच इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच भी speech, it means the words uttered by the speaker himself. डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? वो वर्ड जो स्पीकर खुद कहता है, उस वर्ड को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है? in this speech, in this type there is a comma placed before the verb, sorry, after the verb, वर्ब के बाद यहां पे क्या लगाया जाता है? कामा लगा दिया जाता है। ये कामा क्या है? दिस इज वर्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रिपोर्टर स्पीच। इसको क्या कहा जाता है? जो कामे के अंदर है, जो कामा से अलग की गई है, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। एंड देन क्या है? फिर क्या होता है? देन द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर in the form of different types of sentences and tenses। जो वर्ड्स अटर करता है कौन? स्पीकर। जो वर्ड स्पीकर स्पोक करता है, बोलता है, उनको डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, या वो सेंटेंस होते हैं अलग किस्म के। सेंटेंस की बताई थी मैंने, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। मैंने जब सेंटेंस पढ़ाया उसमें आई हैव डिस्कस अर्लियर, ए सेंटेंस इज ऑफ डिफरेंट टाइप। इट मे बी affirmative, it may be declarative, one thing when one declare, when one person affirm something, or it may be positive, it may be negative. Then it may be interrogative also I will discuss. There are two types, one is the why question and another the auxiliary verb के साथ जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। Then there is a imperative sentence in which we make use of imperative, that shut the door, open the window, fetch me a glass of water, sit here, stand there. These are the such type of sentences are called the imperative sentence. Then there are exclamatory sentence which show certain feeling of joy, sorrow, pain, whatsoever it is. There is a sign of exclamation always there. Then tense, I have written our tense. What these sentences are also written as per tense. Tense I have discussed earlier. Tense are of three types: present, past, present and future. The tense, then all these three tenses are again subdivided into four classes known as the simple sentence, simple indefinite, यानी simple indefinite means simple present, simple past, simple future, then present continuous, past continuous, future continuous, then past perfect, present perfect, future, then present continuous, perfect continuous, then past perfect continuous, then future perfect continuous. There are different types. All tenses are further subdivided into different classes. I have discussed these tense in my videos that have been already you have gone through. No, today the version is differently and I am taking it as a review exercise. Review means because these things are reviewed again, so that if there is any sort of complication in those videos, that can be discussed over here in a friendship way. Anyhow, mistakes are committed by a human being. कहते हैं ना ये to any human to forget one. इंसान गलती का पुतला है, खुदा इसको खुद ही माफ कर देता है। हर इंसान गलती करता है, तो टीचर तो वैसे पता नहीं कितनी गलती करता है, कोई जरूरी थोड़ी है वो सारी परफेक्ट होगा। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी इसमें डिस्कस किए जाते हैं। दे आर रिपोर्टेड स्पीच जो है, इट इज enclosed within inverted commas। इसको इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, देन सो
the word which are uttered, that is being what he says, person what says, that is he says, I say, I said to him, you said to him, he told him, he said to him, he says to him, he will say, I will say. These are all important verb. And the word which are enclosed with the inverted comma, this is called the reported speech. That is why this is of two types. Number one, डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा मैंने आपको बता दो किस्म की स्पीच है. एक क्या है, एक है रिपोर्टेड स्पीच और एक है दूसरी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टेड वर्ब, इट मींस द वर्ड्स अटर्ड बाय द स्पीकर. इसको क्या कहा है, इन दिस टाइप देयर इज अ कामा प्लेस्ड बिफोर द रिपोर्टेड वर्ब. वर्ब मीन रिपोर्टेड, दैट इज, इसको लिख लो, दैट इज रिपोर्टेड वर्ब. इसको रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है. देन नो व्हाइल वी चेंज दिस, मैंने बोला दो टाइप के डायरेक्ट स्पीच होती है. अब डायरेक्ट के बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, while changing the sentence into indirect speech mean the words which are uttered by the speaker, these words are spoken before the third person. तीसरे आदमी को जाकर सुनाए जाते हैं कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब जो स्पीकर ने खुद के हैं उन वर्ड्स को उठा के तीसरे आदमी को सुनाना कि उसने मुझे ऐसा कहा था कि ऐसा ये होता है. तो उसके लिए क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच के लिए क्या होता है, ये जो कामा है, द इन्वर्टेड कामास और ओमिटेड, इनको हटा दिया जाता है बाय प्लेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शन एज पर द नीड, एज पर द नीड, जैसी नीड होती है उसी किस्म में कंजक्शन लगाया जाता है. यहां पे कभी कभी क्या लगता है, दैट इज, वी में यूज, हम यूज कर सकते हैं दैट, ये भी कंजक्शन है. विच, ये भी कंजक्शन है. इफ, ये भी कंजक्शन है. वेदर, ये भी कंजक्शन है. एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विद सारो, पेन, etc. are exclaimed with joy. You may write this, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, joyfully और joyfully, joyfully. और it also, this can also be, ये जो लिखा मैंने sorrow, it can also be written as exclaimed with sorrowfully और sorrowfully. या कभी कभी क्या आता है, you can command here, यहाँ पे command करते हैं, लेकिन there are some certain sentences tense in which we have used imperative sentence, there we need not to use these such words, conjunction is not used over here, there only we apply 2 plus 1, we apply only 2 plus 1. And one more, when we ask a question, when the question start with why, then it is, then question start with W H plus. जब इससे स्टार्ट होता है तो वी रिप्लेस द थिंग विद द सेम, जैसा है वैसे का वैसा ही रख देते हैं. नो, लेट्स डू वन एग्जांपल फॉर यू. तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, जैसे ही एग्जांपल लिखेंगे इसको कैसे किया जाता है. ठीक है, तो ये क्या रूल है. देखिए, जब तक आपको रूल नहीं आता किसी चीज का तो आप किसी भी चीज को सेटिस्फाई, ना तो तुम्हें सॉल्व होगा क्वेश्चन, और सॉल्व कर भी दोगे बाय हुक एंड क्रुक मेथड से, तो यू विल नॉट बी गिवन अवार्ड, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, क्यों, वो आपका करने का तरीका बिल्कुल गलत होगा. ऐसा नहीं होता, हम किसी भी चीज को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. जो भी करना है, व्हाट यू हैव टू डू इन योर एक्सरसाइज, इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैव टू डू ओनली as per rule. You can't go beyond the norms, because there are different types of norms that have been discussed here, that will be discussed here. Now one example I will do here. He says, this is what in tense, present, indefinite. You have studied that when there is simple present tense, we use s या es with the verb, but that should be third person. तो ये थर्ड पर्सन है, he, इसलिए इसमें says लगा है. या I say you are, I say you are late. मैंने कहा आप देर से आए हैं,
तो ये सेंटेंस और इसमें फर्क क्या है, क्योंकि दिस इज फर्स्ट पर्सन, दिस इज थर्ड पर्सन। जब देयर इज थर्ड पर्सन वी मेक यूज ऑफ विद द वर्ब एस, बट व्हेन देयर इज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वी मेक यूज ऑफ द यू से। जैसे इन सेकंड पर्सन यू से he was not present today, he was not present yesterday। आपने कहा कि वो कल स्कूल नहीं आया था, तो he you say the second person, so with the second person we are not having verb s or es, इसके साथ s या es नहीं लगा, सिर्फ ओनली थर्ड पर्सन टेंस होगा। सिंपल इंडेफिनिट में s या es लगता है। बाकी हम पढ़ेंगे जैसे रूल्स आएंगे, रूल के मुताबिक मैं आपके साथ ये सब बातें डिस्कस करता जाऊंगा। तो लेट्स दीज आर द डायरेक्ट वर्ड्स, दिस इज डायरेक्ट स्पीच, ये भी डायरेक्ट स्पीच है, ये भी डायरेक्ट है। अब हमने इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। आई विल नो देयर on the board I have wrote that while changing the word from the direct to indirect speech what changes are being made। अब वो चेंजेस है वो रूल्स के बाद में करेंगे, रूल लिखेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें क्या होता है। ही सेज, वह कहता है, आई मंडन, तो क्या होगा ही। अब से को आप टेल में कन्वर्ट कर दीजिए, यू कैन चेंज दिस से इनटू टेल। ही टेल्स, कंजक्शन यूज करेंगे दैट और कामा ओमिट करते हैं, ये लिखा था मैंने, जब कंजक्शन लगता है तो कामा ओमिट कर दिया था। और व्हाट इज कंजक्शन, दिस अबाउट कंजक्शन यू हैव स्टडीड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वन इज द नोन प्रोनाउन, नोन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, verb and adverb, then there is a preposition, then there is a conjunction, then last there is a interjection. There are 8 parts of speech and all these parts of speech without any one। अगर जैसे कहते हैं ना, अब हम मान लो कोई डिश तैयार करते हैं, तो मान लो डिश बना रहे हो आप, उसमें नमक नहीं डालते तो डिश का टेस्ट ही नहीं होता। ये समझे किसी में नमक का काम करते हैं। जैसे आपने कोई डिश चिकन ही तैयार किया है, चिकन बड़ी डिलिशियस चिकन तैयार किया, लेकिन आपने उसमें क्या किया, चिकन मीट मांस में चिकन मसाला नहीं डाला, तो उसका भी टेस्ट वैसा नहीं आएगा। ठीक है, हर चीज के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए हम चीजों की जरूरत होती है, सिमिलरली वी नीड व्हाइल राइटिंग द सेंटेंसेस, व्हाइल राइटिंग द इंग्लिश ग्रामर, व्हाइल राइटिंग द हिंदी लैंग्वेज, व्हाइल राइटिंग द उर्दू लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज व्हाटएवर यू आर राइटिंग टू, यू मेक यूज ऑफ parts of speech and there are 8 parts of speech। First is the noun, pronoun, and then an adjective, verb and adverb, preposition, conjunction and then interjection। हिंदी में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक, विषमयादी बोधक। then in उर्दू में कहते हैं इसम, फेल, बहुत सारी उसमें बड़ी बातें हैं, ठीक है ना, तो वो हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर एनी लैंग्वेज, आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर ओनली द टॉपिक दैट इज कंसर्न्ड विद द इंग्लिश, तो वी हैव टू ओनली डिस्कस ओवर इन इंग्लिश। ही टेल्स दैट आई, दैट इज द फर्स्ट पर्सन, लेकिन what will happen here, he tells that I, then there is a first person, it changes the cardinal subject of the reporting verb। रूल है, इस पे रूल भी लिख देता हूं। Rule number 1, if the subject of the reported speech is first person, that is I or we, it will change according to the subject of the reported verb। देखिए, अगर इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई है या वी है, तो ये चेंज हो जा, कैसे चेंज होगा, एज पर सब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के मुताबिक चेंज होगा। बट टेंस ऑफ द tense of the reported speech also changes as per tense of the reporting या रिपोर्टेड, चलो रिपोर्टेड लिख देता हूं, आपको कंफ्यूज होगा, रिपोर्टेड वर्ब, तो इनका टेंस भी उसी के मुताबिक चेंज होगा। देखिए
यहाँ पे टेंस क्या है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। देखिए ये रूल है, दिस इज रूल, यू कांट गो बियॉन्ड द रूल। आप नियम के खिलाफ नहीं कर सकते। कई लोग बाय लॉज को तोड़ के कहीं आगे चले जाते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स है, यू कांट क्रॉस द ट्रैफिक इफ देयर इज अ रेड क्रॉस, रेड सिग्नल, यू कैन ओनली क्रॉस द रोड ऑन फुट व्हेन देयर इज अ ग्रीन सिग्नल, सॉरी येलो सिग्नल, if there is a green signal then you can go on with your vehicle, otherwise this is a rule. So rule, if anyone by break the rules he is liable to be punished. There is a quote, जो अब दूसरी बात पे चल जाएंगे, जिन्होंने संविधान बनाया था उन्हें रूल इसलिए बनाए थे कि लोग ऐसा ना करें, लेकिन लोग तो रूल तोड़ रहे हैं, खुद ही बनाने वाले तोड़ रहे हैं, है ना। तो ये हमने नहीं बनाए, ये रूल्स हैं, these have been framed by some experts and that's why we are teaching you, we are informing you कि you can't go beyond these rules, आपको इसी रूल के खिलाफ चलना है। तो क्या है, ये सिंपल था, तो क्या है, he tells that, कंजक्शन यूज कर लिया था, मैंने लिखा था पहले कि भाई कामा को अमिट कर दो तो आप कंजक्शन यूज करेंगे। कंजक्शन डिफरेंट टाइप है, वो भी ये भी लिखा है, जिस किस्म का सेंटेंस होगा, जिस किस्म का टेंस होगा, उसी किस्म का उसमें कंजक्शन लगेगा। तो कंजक्शन भी लिखे थे, इफ लग सकता है, वेदर लग सकता है, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम सॉरोफुली, एक्सक्लेम जॉयफुली, कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन एज पर नीड क्या है, कहीं में 2+1 भी लग सकता है, वो नीड के मुताबिक जैसा टेंस होगा वैसा आपको, बट देयर इज सम यूनिवर्सल ट्रूथ। I haven't discussed earlier, universal truth, there is no change, only you have to place their conjunction that next all is okay, there is no change in the tense, ठीक है। he tells that he, अब am था तो he लग गया, इस पर he is undone, तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं की कि मैंने जाके ये बात उससे जो कही थी, उसने कहा कि मैं आई एम undone, मैंने कहा मैं तीसरे बदल के यार वो क्या करता है कि मैं यार undone है कि वह ठीक नहीं, ही इज अंडर, मतलब एक बात को उठा के तीसरे को सुनाना। देन इन द सेकंड सेंटेंस आई से, देयर इज द सेकंड पर्सन, अब इसके भी रूल है, रूल फॉर सेकंड पर्सन, ये दिस इज रूल फॉर फर्स्ट पर्सन, देन रूल फॉर सेकंड पर्सन। लो लेट मी डिस्कस विद यू फर्स्ट रूल फॉर सेकंड पर्सन, फिर देखेंगे आगे। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब इज सेकंड पर्सन, that is you or you, अगर ये सेकंड you है, it will change according to the subject object of the reporting verb, according to the object of the reported verb, reported verb के object के मुताबिक चेंज होगा, बाकी सेम है, that लगेगा जो भी है वैसे लगेगा, लेकिन ये understood है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया। I से मैं कहता हूं वो देर से आया, आई से किसको कहा, भाई मैं किसी को कहा ना, आई से टू स्टूडेंट्स, आई से टू द टीचर, आई से टू हिम, मैंने उससे कहा, किसी को कहा, तो अंडरस्टूड है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, ये इनडायरेक्ट है ना, अभी इसका इनडायरेक्ट आएगा, आई टेल, मैंने कहा, दैट, अब हिम होगा तो ही इज लेट, क्यों ही क्यों लगाया, यहां पर तो नहीं है ना, इसके पीछे तो कुछ है नहीं, लेकिन इट इज अंडरस्टूड, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज अंडरस्टूड, इट इज मीन कि द पर्सन इज टॉकिंग टू द थर्ड पर्सन, तो हमेशा वो तीसरा आदमी हो, तीसरा आदमी कौन होता है, ही, हिम, शी, हर, है ना, इट्स दे, देम, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेकंड पर्सन भी लिया मैंने, अब ही दिया यहाँ पे, एक ये क्या है, थर्ड पर्सन। आप एक और बात रूल लगी, रूल नंबर सॉरी ये रूल नंबर में 2 था, आई हैव omitted it, sorry, this is a mistake committed by me because this is rule number 2nd and now rule number 3rd, no, rule number 3rd is the subject of the reported speech is third person, that is he, she, it or they है, और ये होंगे, देन देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगी, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, जिस तरह से होगा उसको उसी तरह से लिख देंगे हम, ठीक है। जैसे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब ही, शी, इट या दे है, कुछ भी है तो ये चेंज नहीं होगा,
इसके लिए चेंज करना ही नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये चेंज हम नहीं कर सकते। इसका चेंज नहीं करने का रीजन है, क्यों, क्या रीजन है भाई, चेंज कैसे करेंगे? हमने इसको चेंज इसलिए नहीं करना है कि इसमें जब चेंज होगी तो वो तो फिर किस में करेंगे, थर्ड पर्सन है, वो तो जैसा है वैसा रहेगा। तो जैसा देखिए करते हैं, इसका थर्ड पर्सन सेंटेंस ही आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। यू से ही वाज नॉट प्रेजेंट यस्टरडे, यू टेल दैट he was not present, चलो देखते पेपर में, he was not present the previous day, कि पिछले दिन वो मौजूद नहीं था। उसने कहा कि वह पिछले दिन मौजूद नहीं था। तो वैसे यहाँ पे एक सेकंड ये मिस्टेक है, ही सेड, इसको यू सेड लिख देते हैं। अब इसका पास्ट है ना, तो ये फिर पास्ट में लिखा गया, तो इसको कहते हैं told, you told, said में told में कर देंगे that he was not present yesterday, कि वो कल the previous day, वो कल मौजूद नहीं था। he said, you said लिख दिया मैंने, इसका present ये past है तो ये past था, इसलिए इसको past perfect में बनना था, लेकिन past change into past perfect, तो ये बनेगा he was not present yesterday, वैसे ही लिख दिया जैसा है उसको वैसे लिख दिया। थर्ड पर्सन नो चेंज होती है, थर्ड पर्सन ही है तो ही रहेगा। लेकिन कुछ चेंजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, शायद इसमें कोई कंफ्यूजन हो सकता है। आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन एज वेल। हो सकता है कि इसमें कुछ माइन्यूटली मिस्टेक हो, तो आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट टॉपिक मीन द डे आफ्टर टुमारो इफ आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। हो सकता है, मैंने पहले बता दिया, टू एनी ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इंसान गलती का पुतला है तो खुदा माफ करता है, ऐसी बात नहीं है। उसको पता है इंसान से गलती होती है, क्योंकि वो गलतियां करती है। अच्छा, अब देयर आर सम चेंजेस व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल चेंजिंग सम सेंटेंस फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करने में। जैसे मान लो आपको दिया है से, इसको आप कन्वर्ट करते हैं टेल। अगर आपको दिया सेड, इसको कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में। जैसे अगर दिया यहाँ पे हेयर, इसको कन्वर्ट करेंगे देयर में। अगर नो दिया है सेंटेंस में, इसको करेंगे देन में। अगर यहाँ पे दिया गो, को कन्वर्ट करेंगे कम में। इनके उसके विपरीत ये चेंज होगा। अगर लिखा टुडे, इसको करेंगे दैट डे। अगर लिखा नेक्स्ट डे, इसको लिखेंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। अगर लिखा टुमारो मतलब कल, तो फिर लिखेंगे इसको द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ठीक है, हाँ, टुमारो को क्या लिखे द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे को क्या लिखे द फॉलोइंग डे। इस तरह अगर लिखा है यस्टरडे, तो इसको लिखे द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे पिछले दिन। अगर लिखा है नेक्स्ट मंथ, इसमें लिखा है द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने में, फॉलोइंग मंथ। अगर लिखा है लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ, जो पिछला महीना है। तो देयर आर सर्टेन चेंजेस, इसमें बहुत सी चेंजेस होती हैं जो यूज की जाती है। जैसे अगर दिया आपको आई, ये चेंज होगा मी में। अगर दिया आपको वी, ये चेंज होगा अस में। अगर आपको चेंज दिया यू, यू चेंज नहीं होता, यू में रहता है। अगर दिया ही का बनेगा हिम। शी, इसका बनेगा हर। इट हो सकता है इट्स में चेंज हो जाए, दे का देम। ये भी कुछ चेंजेस है जो इसमें यूज होती हैं। देखिए, जब हम टेंस को कन्वर्ट करते हैं या किस चीज को चेंज करते हैं, उसमें बहुत से चेंज आती हैं। एक चेंज नहीं आती, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, तो वो लगानी पड़ती हैं, उससे सेंटेंस। हाँ, टेंस भी होते हैं। मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में नहीं रहेगा, वो उसी में रहेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है लेकिन वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्ब जो है वो पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। अगर वो
पास्ट परफेक्ट है, सिर्फ पास्ट है, पहला पास्ट है दूसरा पास्ट है, तो इट विल बी द सेम। अदरवाइज अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बन जाएगा। मतलब इसमें बहुत सी चीज आएंगी, ऐसे नहीं होता। तो ठीक है, नाउ टुडे so far what I have discussed here that have been dictated written on the board. Now next time I will try my best to take the next video on the changes along with tenses and along with the examples as per tense। एक टेंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे और उसी टेंस के हिसाब से हम इसके लिए वीडियोस तैयार करेंगे। Dear students, if you like my videos, it's your duty to go through the video minutely, watch it completely। जब तक आप वॉच नहीं कंप्लीटली करते तो वीडियो देखना आधा छोड़ देते हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है कि वीडियोस डालना अब मेरा एक और मोटो बन गया कि आई हैव टू कंप्लीट माय आवर्स 4000 आवर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई हैव क्रॉस्ड द 1000 मार्क, नो 7000 हैज बीन स्टार्टेड। सो प्लीज आई do hope that all my students will watch, like, share and subscribe my channel as much as they can. Bye. Thank you. Okay.